کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا۔ شاعر کہتا ہے ساری خلقت میں ہے جملہ انبیاء سب سے الگ، ہاں مگر ان میں میرے مصطفیٰ سب سے الگ، ہاں مگر ان میں ہے میرے مصطفیٰ سب سے الگ۔ اور احد ہو بدر ہو خندق ہو چاہے ہو حنین، ان میں ہے یہ کربلا کا معرکہ سب سے الگ۔ اور ترجمہ قرآن کے دنیا میں جتنے بھی ہوئے ان میں ہے احمد رضا کا ترجمہ سب سے الگ۔ اور رات چھوٹی پڑ گئی سجدہ مکمل نہ ہوا، آپ کا ذوق عبادت فاطمہ سب سے الگ۔ پڑھیے درود شریف اللہم صلی علی سیدنا سفینا ابینا مولانا محمد بن صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی خطبات مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے محبوب، اس کا ترجمہ ہے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ قرآن کا ترجمہ ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ فرما رہا ہے محبوب ہم آپ کو راضی اتنا عطا کریں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ اب حضرات گرامی آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کے دل میں یہی ارمان رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو دل میں یہی ارمان رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو دل میں یہی خواہش رہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو دل میں یہی خواہش رہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ جتنے نبی اس دنیا میں تشریف لائے دل میں یہی ارمان کے ساتھ آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تمام انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتی ہے، تمام اولیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، چرند و پرند اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، عرش و کرسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتی ہے، آسمان و زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتی ہے، تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتی ہے، تمام فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتی ہے۔ لیکن حضرات گرامی قرآن کہتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے آپ راضی ہو جائیں گے۔ ایک طرف تمام دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتی ہے اور ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اب کے اپنے رب کے نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو۔ حضرات گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اور رحمتیں کتنی ہمارے اوپر ہیں یہ ذرا ہم احساس کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑوں احسان ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہمیں کسی اور نبی کی امت بنا کر بھیجتا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا آدم کی امت، نوح کی امت، عیسیٰ کی امت بنا کر بھیج دیتا، لیکن حضرات گرامی قربان جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ نے اس امت میں ہمیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان رسول کی امت میں پیدا کیا جس رسول کے امت پر پیدا ہونے کے لیے بنی اسرائیل کے نبیوں نے دعا کی ہے۔ اس امت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، یہ سب سے بڑا شکر و احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اور حضرات گرامی کچھ دن قبل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی تاریخ گئی۔ حضرات گرامی دنیا میں تمام جتنی بڑی خوشی ہے سب سے بڑی ہمارے لیے اگر کوئی خوشی ہے تو وہ جشن عید میلاد نبی کا خوشی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس دن ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور ہمارے آقا کی آمد ہوئی۔ اور حضرات گرامی ظاہری تو آپ کی آمد
12 रबीउल अव्वल शरीफ हुई, लेकिन हजरात गिरामी जब आसमान जमीन नहीं था, अर्श व कुर्सी नहीं था, तमाम चीजें नहीं थी, अल्लाह तबारक व तआला ने अगर किसी को सबसे पहले बनाना चाहा तो वो मुस्तफा जाने रहमत की नूर को बनाया, और मुस्तफा जाने रहमत की नूर को बनाया, और उसी मुस्तफा जाने रहमत की नूर से फरिश्तों को बनाया, जिन्नात को बनाया, उसी मुस्तफा जाने रहमत की नूर से, मेरे आका के नूर से, आका अलैहि सलाम के नूर से हजरत आदम को बनाया, आका अलैहि सलाम के नूर से हजरत ईसा को बनाया, आका अलैहि सलाम के नूर से हजरत मूसा को बनाया, आसमान बनाया, जमीन बनाया, चांद और सूरज, ये सब बाद में बनी, सबसे पहले बनने वाली जात मुस्तफा जाने रहमत का नूर है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हदीस पाक में है, नबी कौनैन इरशाद फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ताला ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया और उसके बाद मेरे नूर से तमाम चीजों को पैदा फरमाया। हजरात गिरामी, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से मेरे नबी पूछते हैं, हुजूर की उम्र का अंदाजा कीजिए। जब मेरे नबी ने पूछा है, जिब्राइल तुम्हारा उम्र कितना है, तुम्हारा उम्र कितना है, तुम तो आदम को भी वही भेजते थे, ईसा के पास भी अल्लाह का वही लेकर आते थे, 1,24,000 कमोबेश 2,24,000 अंबिया किराम दुनिया में गुजरे, तमाम के पास आप वही लेकर आए हैं, आपकी उम्र क्या है? तो हजरात गिरामी जिब्राइल इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे अपनी उम्र का अंदाजा नहीं है, लेकिन या रसूल अल्लाह, जब ये आसमानों जमीन नहीं था, चांद सूरज नहीं था, अल्लाह ने दुनिया में इंसान को नहीं बनाया था, कायनात को नहीं बनाया था, उस कायनात को बनाने से पहले जब अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे बनाया, या रसूल अल्लाह, उसके बाद कायनात को बनाया, या रसूल अल्लाह, आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में मैं जब जन्नत में रहा करता था, या रसूल अल्लाह, वही आदम अलैहिस्सलाम के पास लेकर आता था, जन्नत में रहकर आसमान से एक सितारा चमकता था, उस सितारे को आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से पहले उस सितारे को मैंने 72,000 साल बार चमकते हुए देखा है, और 70,000 साल में एक बार चमकता था। मेरे नबी कहने लगते हैं, ऐ जिब्राइल, मालूम है वो सितारा जो आसमान में 70,000 साल बाद एक बार चमकता था और 72,000 साल बाद चमका था, वो और कोई नहीं है बल्कि वो मेरी जात है, वो मेरा नूर है, वो मेरा नूर चमका करता था। हजरात गिरामी, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात ये है, अल्लाह ने पहले अपने नबी के नूर को बनाया, उसके बाद तमाम दुनिया को बनाया। आज कुछ लोग हवाला मानते हैं, मुस्तफा जाने रहमत के नबी होने का हवाला क्या है? मुस्तफा जाने रहमत हमारी तरह बड़े भाई है, मुस्तफा जाने रहमत हमारे तरह है, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कुर्बान जाओ, तमाम आलम है, ये आलम इंसानियत है, कहीं आलम रूह है, कहीं आलम जिन्नात है, कहीं आलम फरिश्ते हैं, इतने सारे आलम में अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया। अगर मुस्तफा जाने रहमत चाहते किसी आलम में रह जाते, लेकिन कुर्बान जाओ, अगर उनको कोई आलम पसंद आया तो आलम इंसान पसंद आया, हमारे बीच रहने को पसंद आया। हजरात गिरामी, उनकी शान और अजमत तो ये है, वो चाहते कहीं भी किसी भी आलम में रह जाते, जिन्नात आलम जिन्नात में रहते, आलम फरिश्ते में रहते, वो आलम किसी भी आलम में रह जाते, लेकिन कुर्बान जाओ मुस्तफा जाने रहमत को, कि अगर मेरे आका ने किसी आलम को चुना, वो हमारे साथ रहने को चुना। और हजरात गिरामी, आज जो कुछ लोग हुजूर की जात पर भोगते हैं, हुजूर को अपनी तरह मुशाबा करते हैं, उनके आंखों में, उनके दिमाग में इतनी बात नहीं है कि आज जो उनकी ज़हूर हुई है ये और किसी के सदके नहीं, मुस्तफा जाने रहमत के सदके है। आज जो हम सांस ले रहे हैं, आज जो हमारा अकीदा सलामत है, और कोई नहीं बल्कि खानदान मुस्तफा की कुर्बानी के सदके में सलामत है, हुजूर के कुर्बानी की सदके में सलामत है। हजरात गिरामी, वो तो अल्लाह के रसूल है, उनको क्या चीज की कमी है? हदीसों में आया है, नबी पाक इरशाद फरमाते हैं, अगर मैं चाहता तो मेरे दाएं बाएं सोने के पहाड़ उड़ जाते, अगर मैं चाहता तो हीरे मोती जवाहरात के पहाड़ उड़ जाते, लेकिन मेरे नबी कौनैन ने, नबी पाक ने पूरी जिंदगी सादगी के साथ बसर किया,
फाके के साथ बसर किया, अपनी जिंदगी को नॉर्मली जिंदगी बनाया। इसलिए हुजूर अगर अमीरी जिंदगी इख्तियार करते, उनके उम्मत में, नबी की उम्मत में कितने फकीर होते, नबी की उम्मत में कितने गरीब होते, उनके जहन में ये बात आ जाती कि हमारे आका अमीर थे, हम फकीर हैं। लेकिन हजरात गिरामी कुर्बान जाओ नबी पाक की बारगाह में, नबी पाक ने अगर कोई जिंदगी को चुना तो वो फकीरी की जिंदगी को चुना, कोई जिंदगी को चुना तो वो फाका की जिंदगी को चुना। हजरात गिरामी हो तो रसूल कौनैन है, अल्लाह ने उनके लिए तरह तरह की नेमतें तैयार की है, अल्लाह ने उनके लिए उनके सदके में कितने को बख्श दिया है। अगर वो चाहते हजरात गिरामी तो किसी भी आलम में रह जाते, लेकिन ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। पढ़िए दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफियाना अबीना मौलाना मुहम्मद बिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात गिरामी ऐसे लोगों से बचो कि जो मुस्तफा जाने रहमत के शान में उंगली उठाते हैं, मुस्तफा जाने रहमत के शान में बोलते हैं, अपने आप को मुशाबा मुस्तफा जाने रहमत से करते हैं, अपने आप को मुशाबा हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से करते हैं। एक शख्स ने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हमसे ज्यादा मानोगे, हमसे ज्यादा मानोगे। हमारा अकीदा तो यह है एक तराजू में तमाम दुनिया की इबादतों को रखा जाए, तमाम दुनिया की रियासतों को रखा जाए, तमाम दुनिया की कुर्बानियों को रखा जाए, तमाम इबादत, तमाम रियाजत, तमाम मुत्तकियों को एक तराजू में रखा जाए और एक तराजू में मुस्तफा जाने रहमत को रखा जाए। मैंने कहा चल है तू शैतान है, क्योंकि तमाम अगर तराजू दो होगा तो एक तराजू में दुनिया को रखा जाएगा, आखिरत को रखा जाएगा, जन्नत को रखा जाएगा, दोज़ख को रखा जाएगा, तमाम चीजों में एक तराजू में तमाम चीजों को रखा जाएगा और दूसरे तराजू में मुस्तफा जाने रहमत को नहीं बल्कि आपकी एक झलक को रखा जाएगा। तमाम चीजें हल्की पड़ती हुई नजर आएगी, मुस्तफा जाने रहमत की चीजें भारी पड़ती हुई नजर आएंगी। तो हजरात गिरामी आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात ये है, आपकी एक झलक तमाम चीजों पर कुर्बान है। जब अल्लाह ताला आपकी रजा चाहता है, जब अल्लाह ताला कहता है इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते हुजूर पर दुरूद भेजते हैं। जब उस आका पर मेरे अल्लाह तबारक व तआला ने दुरूद पढ़ा, जब उस मुस्तफा जाने रहमत पर मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर अल्लाह तबारक व तआला ने दुरूद पढ़ा और ये कहा कि मैं भी दुरूद पढ़ता हूँ, मेरे फरिश्ते भी दुरूद पढ़ते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो तुम भी हुजूर पाक पर दुरूद पढ़ो। पढ़िए दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफियाना अबीना मौलाना मुहम्मद बिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो हजरात गिरामी ये मौजू का मकसद ये है कि आप हुजूर पाक का दामन पकड़े रहिए, नबी पाक का दामन पकड़े रहिए। आपसे अगर कोई कहे कि नबी पाक के दामन को छोड़े, लेकिन आप कह देना कि हमसे जो कुछ हो सकता है लेकिन हम नबी पाक की दामन नहीं छोड़ेंगे। कैसे छोड़ सकते हैं यार? जब हम कब्र में जाएंगे तो हमको तीसरा सवाल का जवाब देना होगा। पहला जवाब रहेगा मन रब्बुका, तेरा रब कौन है। दूसरा सवाल रहेगा माँ दिनुका, तेरा दिन क्या है। जब तीसरा सवाल आएगा माँ कुंता तकुल इस शख्स के बारे में क्या कहता था, तो हजरात गिरामी कब्र में हुजूर का साथ चाहिए। जब हश्र में उठेंगे नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सूरज करीब हो जाएगा, जमीन ताने की हो जाएगी, तब हजरात गिरामी माँ बाप काम नहीं आएंगे, भाई रिश्तेदार काम नहीं आएंगे। जो दुनिया में कहते थे खड़ा हो तुम्हारे मुशाबा हम खड़े हैं, वहां पर कोई काम नहीं आएगा। नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सब एक नेकी के लिए तरसेंगे, वहां कोई काम आने वाला नहीं है। दोस्त तुम्हारे मुंह फेर लेंगे, बाप माँ तुम्हारे मुंह फेर लेंगे। जो दोस्त यहाँ पर जो दोस्त तुम्हारे साथ में हर जगह घूमने के लिए जाते हैं, जो तुम्हारे खाने बगैर वो खाना नहीं खाते हैं, जिससे आप मोहब्बत करते होंगे वो वहां साथ छोड़ते हुए जाएंगे। ये तमाम चीजें तो एक तरफ माँ अपने बेटे के साथ छोड़ देगा, बेटा अपनी माँ का साथ छोड़ देगा, सब नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे। उस वक्त अगर तमाम उम्मतियों को जो बचाएगा, तमाम उम्मतियों को अपने साये में कोई रखेगा, तो वो मुस्तफा जाने रहमत की जात है, वो मेरे आका की जात है, जो अपनी एक चादर में तमाम उम्मतियों को बचवाएंगे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, ये दुनिया काम आने वाली नहीं है।
जब तक आपकी आंख खुली है ये दुनिया साफ है, जब तक आपकी आंख खुली है ये दुनिया आपको देखने के लिए है, जब तक आपकी आंख खुली है ये दुनिया आपकी तारीफ करेंगे। जिस दिन आपका आंख बंद हो जाएगा आपको 4 दिन याद करेंगे, 5 दिन 10 दिन क्या अच्छा लड़का था, अच्छा बच्चा था, अच्छा आदमी था, लेकिन जब आपका महीना 10 साल 20 साल जब 3-4 साल हो जाएगा आपको ये दुनिया वाले भूल जाएंगे। आपके जहन से वो शख्स ही मिट जाएगा कि कौन मरा है कहाँ गया है। लेकिन याद रखो जब आप मुस्तफा जाने रहमत से मोहब्बत करेंगे, जब आप मेरे आका से मोहब्बत करेंगे, आका के औलादों से मोहब्बत करेंगे, ये मोहब्बत आपकी कब्र में भी काम आएगा और आपके हश्र में भी काम आएगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमको पंजगाना नमाज दिया है। हज़रात गिरामी, अल्लाह ये नहीं कहता है कि आप अपने कारोबार को छोड़कर आके नमाज पढ़ो। हज़रात गिरामी, आपसे अगर दिन में 1 वक्त भी होता है आप नमाज पढ़िए, दिन में आपसे 2 वक्त भी होता है आप नमाज पढ़िए। याद रखिए कोई चीज जो है नफल में सही नफल में जाता है, लेकिन ये जो 5 वक्त की नमाज है, ये जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें तौक़तन 5 वक्त की नमाज दिया है, ये फर्ज है। इसका सवाल पूछा जाएगा, हश्र में भी पूछा जाएगा। हज़रात गिरामी, नमाज के बारे में आपको पकड़ होगा, नमाज के बारे में पूछा जाएगा कि तुम तो हुजूर से मोहब्बत करने का दावा करते थे लेकिन तुम्हारे पास नमाज नहीं है। ये नमाज वो नमाज है मुस्तफा जाने रहमत ने कहा जो मेरा उम्मती नमाज पढ़ेगा मेरे आंखों में ठंडक पहुंचेगा। अब बताओ हज़रात गिरामी, वो नबी कौन है जिसने अपनी जिंदगी को हमारे नाम कर दिया, अपनी जिंदगी को हमारे नाम बसर कर दिया? क्या हम उनके लिए नमाज नहीं पढ़ सकते? क्या हम उनके लिए झूठ बोलना नहीं छोड़ सकते? क्या हम उनके लिए गाली गलौज नहीं छोड़ सकते? हज़रात गिरामी, हम वो उम्मती है, हम वो खुशनसीब उम्मती है तो हुजूर पाक ने अपनी पूरी जिंदगी में हमारे लिए रोए हैं, पूरी जिंदगी में हमारे लिए रब से दुआ किया है, या अल्लाह मेरे उम्मत को मेरे हवाले कर दे, या रब्बे हबली उम्मती। हज़रात गिरामी, इसलिए कहना यह है कि पंजगाना नमाज जो हमारे ऊपर फर्ज है। हज़रात गिरामी, एक रिवायत में आता है जो 1 वक्त की नमाज जान पूछ के छोड़ जाता है, जिन गौसे आजम के हम लोग हज़रात गिरामी याद रखिए, अभी कुछ दिन के बाद गौसे आजम की फातिहा आएगी, गौसे आजम का न्याज मिलेगा, गौसे आजम को मानने वाले करोड़ों तादाद में शिन्नी फातिहा करेंगे, बहुत अच्छी बात है, सवाब का काम है। लेकिन याद रखिए जिन गौसे आजम को हम मानते हैं, हम लंगर चलाते हैं, लोगों को बुलाकर खिलाते हैं, गौसे आजम फरमाते हैं जो 1 वक्त नमाज जानबूझ के छोड़ दे वो काफिर हो जाएगा। अब बताइए हज़रात गिरामी, तालिबीन में गौसे आजम ये फरमाते हैं जो 1 वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ दे वो काफिर हो जाएगा। लेकिन हज़रात गिरामी, गौर कीजिए हमने कितनी नमाजें छोड़ रखी है, हमने कितनी इबादतों को छोड़ रखा है, हमने कितनी रियाजतों को छोड़ रखा है, हमने नबी पाक पर दुरूद पढ़ना भूल गए हैं। जो नबी पाक अपनी जिंदगी में पूरी तमाम जिंदगी में हमको हमारे लिए दुआ करते रहे, लेकिन हमने उनके बारगाह में दुरूद पढ़ना छोड़ दिया है, हमने नमाज पढ़ना छोड़ दिया है। लेकिन हज़रात गिरामी याद रखिए हमको नमाज के बारे में पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम कितना क्या करते थे, लेकिन नमाज के बारे में पूछा जाएगा, हुजूर की मोहब्बत के बारे में पूछा जाएगा। हज़रात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हुजूर से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, पंजगाना नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और हज़रात गिरामी, चंद 10-12 दिन के बाद जारी शरीफ का महीना आ रहा है। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं कि उस वक्त तक कोई मोमिन मेरा नाम नहीं ले सकता जब तक मैं न चाहूं। यह अल्लाह का शुक्र एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको गौसे आजम का नाम लेवा बनाया, गौसे आजम का नाम लेने वाला बनाया। तो हज़रात गिरामी, अपने घरों में गौसे आजम का फातिहा करवाइए, नियाज करवाइए और गौसे आजम की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश कीजिए, गौसे आजम की बारगाह में आप नियाज पेश कीजिए। बेखुसूस हुजूर गौसे आजम के सदक़े में आपकी तमाम गुनाहों को अल्लाह माफ करेगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अगर तुम्हें कोई चीज ना मिले तो मेरे महबूब बंदे का वसीला लगा दो, महबूब बंदे का वसीला लगाकर मुझसे मांगोगे तो अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हें अता करूंगा। तो हज़रात गिरामी, अल्लाह के महबूब बंदों में हुजूर गौसे आजम का मर्तबा क्या है? सबसे बड़ा मर्तबा जो तमाम वलियों के सरदार है, अल्लाह तबारक व तआला के सबसे बड़े महबूब बंदे हैं। हज़रात गिरामी, अगर मेरे बोलने में गलती हुई हो तो मैं तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।